چند روز بعد میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر کسی عدیل صاحب کی آمد کی اطلاع دی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آیا کہ وہ کس عدیل کا ذکر کر رہی ہے۔ میں نے عدیل نامی اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جب میرے چیمبر میں داخل ہوا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی عدیل تھا جو کچھ دن پہلے ٹرین میں مجھ سے ملا تھا۔ اس نے مرزا امجد بیگ کی سیٹ پر مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو شدت حیرت سے چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ پھر میری جانب انگلی اٹھاتے ہوئے اس نے سرسراتی آواز میں کہا، آپ بیگ صاحب ہیں؟ جی میں ہی مرزا امجد بیگ ہوں۔ میں نے پیشے ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھے عدیل صاحب۔ وہ جھجکتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بے یقینی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، الجھ کر رہ گیا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر بھی اعتبار نہیں آ رہا، لیکن آپ کو اس دفتر میں موجود پا کر یہی خیال ہو رہا کہ آپ ہی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، لیکن ٹرین میں آپ نے وہ سب کچھ کسی مصلحت کی بنا پر تھا۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، بہرحال آپ سنائیں کہ صادق آباد سے کب واپسی ہوئی؟ 2 روز پہلے، اس نے جواب دیا، تاہم لہجے کی الجھن پوری طرح رفع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے قدرے دوستانہ انداز میں استفسار کیا، سنائیں ادھر صادق آباد میں آپ کے ذمہ دار بھائی کا کیا حال ہے؟ ویسے آپ کو اپنے دفتر میں دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا کیس مرزا امجد بیگ کو یعنی مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے اپنے بھائی کی خیریت سے آگاہ کیا، پھر کیس کے سلسلے میں بتانے لگا، بیگ صاحب آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں چاہتا ہوں یہ کیس آپ ہی ہینڈل کریں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنی فیس کے بارے میں بتا دیں۔ فیس تو ظاہر ہے میں آپ سے پوری ہی لوں گا، لیکن اس حوالے سے بعد میں بات ہوگی۔ میں نے رف پیڈ اور قدم سنبھالتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، پہلے آپ مجھے کیس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کن حالات میں منصور خان کے قتل کے الزام میں جیل بھیجا گیا ہے، اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات کر سکوں گا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس رات ٹرین کے سفر کے دوران جب میں نے خود کو مرزا امجد بیگ کے دوست کے حیثیت سے متعارف کرا دیا تھا تو ہم تینوں میں منصور خان مرڈر کیس کے حوالے سے مختصر سی بات چیت ہوئی تھی، لہٰذا میں ابھی اسی تناظر میں بات کر رہا تھا۔ عدیل احمد نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، بیگ صاحب میرا خیال ہے میں منصور خان کے بارے میں جس حد تک جانتا ہوں پہلے وہ آپ کے علم میں لے آؤں، پھر اپنی بیٹی وردہ کو پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بیان کروں گا تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ جی ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں نے قلم کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو کر اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ وہ اس وقت میری جانب نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے انداز سے بخوبی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ لمحات میں وہ شدید نوعیت کی کسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ جب انسان کے لیے کچھ کہنا کچھ بتانا لازم ہو جائے اور کہنے والی بات بہت ہی نازک ہو تو وہ اس قسم کی کیفیت میں گرفتار دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح وہ تذبذب تامل کے ساتھ مل کر ایسی ہی صورتحال تخلیق کرتے ہیں۔ ان میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو کسی جوان بیٹی کے باپ کے لیے بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ بدستور اپنے ہاتھوں کو گھورتے بھرائی ہوئے آواز میں بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کو جب تک صحیح معلومات اور صحیح حالات کا علم نہ ہو وہ ٹھیک طرح سے کیس نہیں لڑ سکتا، چنانچہ جیت کے امکانات معدوم بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لہٰذا میں نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ کر آپ کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کے خیالات سے پوری طرح متفق ہوں عدیل صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس لیے میں ہمتن گوش ہوں، آپ اطمینان رکھیں، وردہ میرے لیے بھی بیٹی جیسی ہے، ہمارے درمیان ہونے والی باتیں کسی تیسرے تک نہیں پہنچیں گی۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، بس آپ شروع ہو جائیں، اور وہ شروع ہو گیا۔ بیگ صاحب یہ بات کافی عرصے کے بعد میرے علم میں آئی کہ وردہ آصف نامی ایک شخص میں گہری دلچسپی لینے لگی تھی۔ آپ اسے میری نالائکی سمجھ لیں یا کاروباری مجبوری۔ میں صبح سے رات تک اس طرح اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں کہ گھریلو معاملات پر زیادہ توجہ دینے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر واقعات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، وہ بہت ہی حساس اور جذباتی لڑکی ہے۔ عدیل احمد مجھے منصور خان مرڈر کیس کے پس منظر سے آگاہ کر رہا تھا اور میں پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں رف پیڈ پر اہم اور ضروری نکات بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی داستان کے اختتام سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس کیس کو ضرور ہینڈل کروں گا۔ اس روز عدیل نے مجھے جو کچھ بتایا، میں اس کہانی میں سے فروئی اور غیر متعلق باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی سے قبل آپ بھی اس کیس کے پس منظر سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ واضح ہے کہ عدیل احمد نے مجھے جو واقعہ سنائے ان میں کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، میں انہیں ایک ترتیب سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس میں بہت سی باتیں مجھے بعد میں پتہ چلی تھی، لیکن داستان کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے میں نے انہیں بھی شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح بعض باتیں میں نے دانستہ چھپا لی ہیں جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر کیا جائے گا تاکہ کہانی میں تجسس اور سنسی خیزی آخر تک قائم رہے اور آپ کی دلچسپی کو ایک لمحے کے لیے بھی ماننا پڑنے دے۔ عدیل احمد کی عمر 50 کے آس پاس تھی، یہی کوئی 1 آدھ سال کم یا 1 آدھ سال زیادہ ہوگی۔
اس کی रहाइश पटेल पाड़ा के इलाके में थी। मकान ज़ाती था जहां वो अपनी मुख्तसर सी फैमिली के साथ रहता था। ये फैमिली सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। अदील अहमद, इसकी बीवी अमीना बेगम, छोटा बेटा शकील अहमद और वर्दा के जेल जाने के बाद घर में बसने वाले अफराद की तादाद घटकर 3 रह गई थी। वर्दा आर्जी नकल मकानी के बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई थी। अदील अहमद एक छोटा कारोबारी आदमी था। गार्डन के इलाके में चिड़ियाघर के करीब इसकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, जहां वो सुबह से रात तक मसरूफ रहा करता था। अदील अहमद खुद बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सका था। इसे अपनी औलाद को इस जेवर से आरास्ता करने की ठान रखी थी। शकील इन दिनों मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था। इससे पहले वर्दा अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। फिर इसकी ज़िंदगी में एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। इसने मज़ीद तालीम का इरादा तर्क कर दिया। हालांकि अदील की ख्वाहिश थी कि वो मास्टर ज़रूर करे। ग्रेजुएशन के बाद फरागत मिली तो वर्दा ने जॉब का फ़ैसला किया। जब इसने अपनी इस ख्वाहिश के बारे में वालिदैन को बताया तो इसकी माँ अमीना बेगम ने फैसला कुन लहजे में कहा, कोई ज़रूरत नहीं नौकरी की, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। इस घर में किसी शय की कमी है। मैं कोई ज़रूरत या कमी को पूरी करने के लिए नौकरी नहीं करना चाहती। वर्दा ने रसान से जवाब दिया, मैं खुद को मसरूफ़ रखने और अपनी ज़िंदगी में तजर्बा हासिल करने के लिए कोई आर्जी जॉब करूँगी। जब एमए की बाकायदा क्लासेस शुरू होंगी तो अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अमीना बेगम ने हाथ नचाते हुए कहा। ताम इसके अंदाज में ख़ास किस्म की मामताना हमदर्दा पाई जाती थी। अगर इस पढ़ाई से चंदा फुर्सत मिल गई है तो घर में बैठकर आराम करो। भाई तुम बच्ची को खामख्वाह क्यों परेशान कर रही हो? अदील अहमद ने बेटी की हमायत करते हुए कहा, चंद माह की तो बात है, इसे अपना शौक पूरा कर लेने दो। वर्दा ने बाप को अपना हामी पाया तो अमीना बेगम से कहा, अम्मी आपकी फ़िक्र करती हैं, मैं कोई आसान सी और साफ़ सुथरी जॉब करूँगी। अखबारात में पढ़े लिखे लोगों के लिए मुनासिब जॉब्स के इश्तिहारात शाया होते रहते हैं। मैं अब्बू के मशवरे ही से कहीं जॉब का इंतखाब करूँगी। अलगर्ज थोड़ी बहस व तमहीज़ के बाद अमीना बेगम ने बातिल न खास्ता बेटी को मुलाजमत के लिए इजाज़त दे दी। अगले रोज़ से वर्दा ने अखबारात खंगालना शुरू कर दिए। 2-4 दिन कोशिश के बाद इसे एक मौजू और मुनासिब जॉब का इश्तिहार पसंद आया। इसने अदील अहमद से बात की और इसकी रजामंदी पाने के बाद मज़कूरा कंपनी के दफ्तर पहुंच गई। इस कंपनी का दफ्तर मैकलोड रोड मौजूदा आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ था और नाम था क्रिसेंट ट्रेडिंग कंपनी। वो इस कंपनी के बास करीम अब्दुल जब्बार से जाकर मिली, इंटरव्यू दिया और मुतल्लिका पोस्ट के लिए मुंतखब हो गई। इसकी साफ़गोई करीम अब्दुल जब्बार को बहुत पसंद आई। वर्दा ने इंटरव्यू ख़त्म होने पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था, सर मैं गलत बयानी करके कोई मुराद या फ़ायदा हासिल करने के कायल नहीं हूँ। आपने मुझे इस पोस्ट के लिए मुंतखब तो कर लिया, लेकिन मैं ज्वाइनिंग से पहले भी वाज़ेह कर दूँ कि मैं आर्जी तौर पर जॉब का इरादा रखती हूँ। ग्रेजुएशन के इख्तिताम और मास्टर्स के आगाज़ में फुर्सत के जो चंद माह है, मैं इस अरसे में अमली ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात की खातिर मुलाजमत के लिए घर से निकली हूँ। जैसे मेरी एमए की क्लासेस शुरू होंगी मुझे ये जॉब छोड़कर जाना होगा। मुझे तुम्हारी साफ़गोई और फितरी सादगी ने बहुत मुतासिर किया है। करीम अब्दुल जब्बार ने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर तुम्हारे काम ने भी इसी तरह मुतासिर किया तो मेरी ये कोशिश होगी कि तुम इस कंपनी को छोड़कर ना जाओ। मास्टर्स तो जॉब जारी रखते हुए भी किया जा सकता है। बहरहाल वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर नहायत ही संजीदगी से बोला, ये सब बात की बातें हैं, पहले तुम ज्वाइन करो और काम करके दिखाओ, इसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। आइंदा रोज़ से वर्दा ऑफिस जाने लगी। क्रिसेंट ट्रेडिंग कंपनी का काम दूर दूर तक फैला हुआ था। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। वर्दा को वहाँ काम करते बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। करीम अब्दुल जब्बार का एक जुमला इसके ज़हन से चिपक कर रह गया था। इसके बास ने कहा था कि पहले वो काम करके दिखाए, फिर इसके जाने या न जाने का फैसला किया जाएगा। इसे चंद माह के बाद इस मुलाजमत को छोड़ना तो था, लेकिन इसके मिजाज में चैलेंजेस कबूल करने का रुझान भी था। इसने क्रिसेंट ट्रेडिंग कंपनी में काम के पहले रोज़ ही तहैया कर लिया था कि अपने बास को ऐसा काम करके दिखाएगी जिसे वो कभी भूल ना सके। वो चंद माह बाद चाहे कंपनी छोड़कर चली जाए, मगर इसकी यादें कंपनी के एक एक गोशे और वहाँ काम करने वाले एक एक शख्स के जहन में चकराती रहें। क्रिसेंट चूँकि एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, लिहाजा दूसरी कंपनी से इसका वास्ता पड़ता रहता था। और इन्हीं कंपनीज में एक सीगल शिपिंग कंपनी भी थी, जिसका नुमाइंदा आसिफ नामी एक शकीलो बजी शख्स अक्सर बेशतर क्रिसेंट के ऑफिस में आता रहता था। अब वो रोज़ी से आसिफ वर्दा को अच्छा लगा था। ये अच्छा लगना एक आम था तासुर था, जिसे हम मार्केट में जाएं और किसी दुकान पर रखी बहुत सी अशिया में से हम किसी एक चीज़ पसंद आ जाए। लेकिन जल्द ही वर्दा को ये एहसास होने लगा कि इसकी पसंदीदगी किसी चीज़ के इंतखाब वाली नहीं थी, बल्कि इसने अगर दर्जनों अफराद में से किसी एक को पसंद किया था तो इसके पीछे इसकी किसी मखसूस सोच का हाथ था, किसी दिली जज्बे की कारफरमाई थी। वो अपने जज्बात और एहसासात को टटोलने और कुरेदने में मसरूफ़ थी कि एक रोज़ इसे पता चला आसिफ भी बड़ी तेज़ी से इसी की जानिब बढ़ता चला आ रहा है। इसके बाद इनके बीच जो कुछ हुआ इसे अल्फाज में बयान करने की ज़रूरत नहीं। वो दोनों तेज़ी से एक दूसरे के करीब आए और बाहमी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। वर्दा 2-4 माह के लिए जॉब करने घर से निकली थी, लेकिन वापसी का रास्ता भूल गई।
क्रिसेंट कंपनी के दफ्तर में आसिफ से इसकी मुलाकात हो जाती थी। वो इस दफ्तर को कैसे छोड़ सकती थी? जब इसने खुद मुलाजमत छोड़ने की बात नहीं की तो करीम अब्दुल जब्बार ने भी इसे याद दिलाना ज़रूरी नहीं समझा। वो वर्दा के काम से मुतमईन था, लिहाजा इसने इसके मामलात को टटोलने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी कि वर्दा आसिफ की खुसूसी दिलचस्पी ले रही थी। साथ काम करने वाले इस नोयत के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हालांकि वर्दा ने हमेशा ये कोशिश की थी कि दफ्तर में आसिफ से कम बात करे। इसकी एहतियात अपनी जगह, लेकिन ताड़ने वाली निगाह बड़े गजब की होती है। चावल के एक दाने को देखकर देह की कैफियत भांप लेती है। वो दोनों ऑफिस में कम और बाहर ज़्यादा मिलते थे। आइसक्रीम स्पॉट्स, रेस्टोरेंट्स और सी साइड इनके मिलन की पसंदीदा मुकामात थे। इनके दरमियान परवान चढ़ने वाले मोहब्बत और उल्फत के ये मामलात कुछ अरसे तक तो ठीक ठाक चलते रहे, फिर कुछ जैसे वर्दा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। करीम अब्दुल जब्बार ने इसे अपने कमरे में बुलाया और एक नहायत ही गंभीर मौजू पर खासी संजीदा गुफ्तगू करने लगा। वर्दा, वो ठहरे हुए लहजे में इसे मुखातिब करते हुए बोले, मैं अपनी कंपनी में काम करने वालों की कारकर्दगी पर नज़र रखता हूँ और इनके ज़ाती मामलात में मुझे कोई सरोकार नहीं होता, इल्ला ये कि इनके ज़ाती मामलात कंपनी के काम को मुतासिर करने लगे। करीम अब्दुल जब्बार ने लम्हाती तवक्कुफ किया। वर्दा ने उलझन भरे लहजे में इस्तफसार किया, सर क्या मेरी ज़ात से मेरी कंपनी को कोई नुकसान पहुँचा है? किस अमल से किसको फ़ायदा पहुँचा और किसने नुकसान उठाया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। करीम अब्दुल जब्बार ने बदस्तूर ठहरे हुए अंदाज में कहा, इस वक्त मैं तुम्हें से चंद ज़रूरी बातें करने के अपने पास बुलाया है, पहले हम वो बातें कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वर्दा ने इस बात में गर्दन हिला दी। करीम अब्दुल जब्बार ने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, वर्दा, मुझे कोई हक तो नहीं पहुंचता कि तुम्हारे निजी मामलात में बात करूं, लेकिन यूँ समझो मुझे तुमसे ख़ास किस्म की हमदर्दी है। तुम मेरे इदारे की एक अच्छी वर्कर हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी खबरी तुम्हें किसी जज्बाती सदमे से दो चार कर दे, इसलिए सोचा कि आज तुमसे दो ठोक बात कर ही लूँ। वर्दा की समझ में कुछ न आया कि इसके पास किस किस्म की बातें कर रहा था। इस सूरत हाल ने इसकी उलझन में इजाफा कर दिया। वो पूछे बिना न रह सकी, सर मैं भी यही चाहूँगी कि आपको जो कहना है साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह डालें, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। करीम अब्दुल जब्बार ने कहा, मैंने भी अभी तुम्हारी जिस बेखबरी और जज्बाती सदमे का जिक्र किया है, इसका ताल्लुक सीगुल शिपिंग कंपनी के नुमाइंदे आसिफ महमूद से है। आसिफ से? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से अपने बास को देखने लगी। मुझे पता चला है आसिफ आजकल तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है। वर्दा साफ को और निडर किस्म की लड़की थी। एक लम्हे इसने सोचे बगैर जवाब दिया, सर ये दिलचस्पी दो तरफा है। करीम अब्दुल जब्बार ने मायने खेज़ अंदाज में होंठ सुकेड़े और अपनी मेज़ की चीज़ों से खेलते हुए बोला, इसका मतलब तुम आसिफ के बारे में कुछ नहीं जानती हो। सर आप ही बता दें, वर्दा ने मुतामलाना लहजे में कहा। मैं आपके अंदाज को समझ नहीं पा रही हूँ। करीम अब्दुल जब्बार ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक आसिफ तुम में संजीदा नहीं, वो महज टाइम पास कर रहा है। ऐसी बात नहीं है सर, वर्दा ने नीम एहतजाजी लहजे में कहा। जितनी संजीदा मैं हूँ इससे कुछ ज़्यादा है। मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? करीम अब्दुल जब्बार ने बेयकीनी से वर्दा को देखा। जी सर शादी, वो सादगी से बोली। लेकिन आप इस बात पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या तुम एक शादीशुदा शख्स से शादी के लिए तैयार हो? शादीशुदा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना है। करीम अब्दुल जब्बार ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, आसिफ न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि इसके दो खूबसूरत बच्चे भी हैं। क्या इसने तुम्हें अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। वो शदीद उलझन का शिकार थी। इससे तुम आसिफ की संजीदगी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकती हो। करीम अब्दुल जब्बार ने समझाने वाले अंदाज में कहा, वो अपनी शादी को छुपाकर तुमसे मोहब्बत का खेल खेल रहा है और तुम्हें यह भी यकीन दिला रखा है कि वो तुमसे शादी करेगा। अब तो तुम अच्छी तरह समझ गई होगी कि मैंने तुम्हें क्या बताने के अपने पास बुलाया है। सर आप तजर्बाकार, जहादीदा और मेरे लिए काबिल एतबार इंसान है, लिहाजा मैं समझती हूँ आपने कोई गलत बयानी नहीं की होगी। वर्दा ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं आपकी फराहम करदा मालूमात की रोशनी में आसिफ से बात करूंगी, देखती हूँ इस सिलसिले में वो क्या सफाई पेश करता है। करीम अब्दुल जब्बार ने कहा, अगर वो हकाइक से इनकार करने की कोशिश करे तो तुम इसे कह सकती हो इसकी शादी के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, फिर वो इस हकीकत को झुठला नहीं सकेगा। ठीक है सर, आपका हवाला खासा मोतबर रहेगा। वर्दा सवाल जवाब के इस सेशन में खासी माकूलियत का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन दिल से इसकी ख्वाहिश यही थी कि करीम अब्दुल जब्बार का कहा लफ्ज़ गलत साबित हो और आसिफ वैसा ही निकले जैसा वो इसे समझ रही है। यह सिर्फ वर्दा का ही नहीं बल्कि हर मोहब्बत करने वाले, हर एतमाद करने वाले शख्स का मसला है कि इसकी नज़र में जो भी मोतबर हो वो इसमें कोई कमी, कोई खामी या कोई कजी देखने का रवादार नहीं होता। वो अपनी मोहब्बत, अपने एतबार को हर जाविये से बेदाग और मुकम्मल देखने का ख्वाहां होता है। करीम अब्दुल जब्बार ने आखिर में बड़े नुक्ते की बात की। यह भी हो सकता है जब इसे मालूम हो कि तुम इस हकीकत से आगाह हो चुकी हो
तो तुमसे दूसरी शादी की बात करे। इसके ऐसे किसी झांसे में ना आना, ऐसा होना नामुमकिनात में से है। सर मैं कुछ समझी नहीं, वर्दा तशवीश भरे लहजे में बोली। मैं समझाता हूँ। करीम अब्दुल जब्बार ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आसिफ इस वक्त जो कुछ भी है वो अपनी बीवी शबाना की वजह से है। घर, गाड़ी, ऐशो आराम और शानदार जॉब सब शबाना ही की रहीनी मन्नत है। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि शबाना सीगल शिपिंग कंपनी के एक डायरेक्टर की बेटी है और इसी डायरेक्टर के बलबूते पर आसिफ ने इतनी तरक्की की है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ तो वर्दा शिद्दत हैरत से आंखें फाड़े इसका मुंह देख रही थी। करीम अब्दुल जब्बार ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैंने जो कहा है ना कि आसिफ की दूसरी शादी नामुमकिनात में से है, तो इसका वाज़ेह मतलब ये कि वो आज जो कुछ भी है वो शबाना ही की वजह से है। एक तो फैलिया दूसरी शादी जैसे फैसले की इस्तात रखने की पोजीशन में कभी नहीं होता। ठीक है सर, मैं आसिफ से बात करके देखती हूँ, वर्दा फैसला कुन लहजे में कहा। बहरहाल इतनी अहम और सनसनीखेज मालूमात फराहम करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। वो तुम्हारे इस्तफसारात के जवाब में जो कुछ भी कहे मुझे आकर बताना, करीम अब्दुल जब्बार ने अपना ईद भरे लहजे में कहा। वर्दा ने इसके हिदायत पर अमल करने का वादा किया और अपने बास के कमरे से निकल आई। 2 रोज बाद वो आसिफ के साथ साहिल समंदर के एक पुरसकून और अलग थलग गोशे में मौजूद थी। इनके दरमियान जब मोहब्बत भरी रस्मी बातें हो चुकी तो वर्दा ने एकदम संजीदा होते हुए इससे कहा, आसिफ तुमने कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैं तुम्हें अपने और अपनी फैमिली के बारे में पूरी तफसील बता चुकी हूँ। आसिफ ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और टटोलने वाले अंदाज में बोला, मेरा ख्याल है आज तक तुमने मुझसे जो भी सवाल किया है मैंने इसका मुनासिब जवाब दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस किस्म की बातें क्यों ले बैठी हो। हम अच्छे खासे खुशगवार मूड में हैं। तुमने आज तक मुझे जो कुछ भी बताया है इसका तल्लुक किसी न किसी हवाले से सीगुल शिपिंग कंपनी से रहा है। वर्दा इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ी, जबकि इस वक्त मैं तुम्हारी फैमिली लाइफ की बात कर रही हूँ। आसिफ के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, ताहम खुद को संभालने की कोशिश करते इसने कहा, हाँ हाँ पूछो, तुम मेरी फैमिली लाइफ के बारे में क्या जानना चाहती हो? आसिफ तुम्हारे हवाले से मुझे एक नहायत अहम बात का पता चला है। वर्दा ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुमसे इस बात की तस्दीक या तरदीद सुनना चाहती हूँ। कौन सी बात? वो बौखलाहट में इस लहजे में बोला, क्या तुम शादीशुदा हो? वर्दा ने ठोस अंदाज में पूछा। आसिफ की बौखलाहट में 1000 गुना इजाफा हो गया। वो निगाह चुराते हुए मफरूर लहजे में बोला, तुम्हें ये बात किसने बताई है? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? वर्दा ने कदरे चुपते हुए अंदाज में कहा, अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो इनकार में जवाब दे दो, बस बात खत्म। जवाब तो मैं दे ही दूंगा, आसिफ ने मुतामालाना अंदाज में कहा, लेकिन पता तो चले आखिर मेरे खिलाफ किसे तुम्हारे कान भरे हैं। वर्दा ने गंभीर लहजे में सूरत हाल इस पर वाज़ेह कर दी। मुझे अपने बास करीम अब्दुल जब्बार साहिब की जुबानी पता चला कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और तुम्हारी बीवी शबाना सीगुल शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मजीद अनवर की बेटी है। और वो लम्हे भर के लिए सांस दुरुस्त करने की रुकी, फिर तंज़ अंदाज में इजाफा करते हुए बोली, और ये कि तुम्हारी हैंडसम जॉब, शानदार बंगला, चमचमाती गाड़ी और शानदार ठाट बाट सब शबाना ही के दम कदम से कायम है। आसिफ यकायक न पाए रफ्तन न जाए मानदन ऐसी सूरत हाल से 2-4 हो गया। जब कुछ इसकी समझ में न आया तो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक बोझल और मुजमहिल सी सांस खारिज करते हुए बोला, वर्दा तुमने जो भी सुना वो एक ठोस हकीकत है। वर्दा को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके अंदर कांच की कोई नाजुक शीशा छनाके से टूट गई है। ताहम वो इन जज्बाती लड़कियों में से नहीं थी जो इस नोयत की सिचुएशन में रोना धोना शुरू कर देती हैं। इसने खुद को संभाले रखा और नहायत ही मुतदिल लहजे में आसिफ से दोबारा पूछा, और तुमने ये ठोस हकीकत मुझसे छुपा रखी है? मैं तुम्हें बताना चाहता था। वो इधर उधर देखते हुए बोला, बस मुझे किसी मुनासिब मौके का इंतजार था। साफ नजर आ रहा था कि वो द्रोह गोई से काम ले रहा था। आसिफ, वर्दा ने सनसनाते हुए लहजे में कहा, मुझे इस बात को कोई दुख नहीं कि तुम एक शादीशुदा शख्स हो, ताहम इस खुली हकीकत को मुझसे छुपाकर तुमने मेरे एतमाद की फलकबोस इमारत को ज़मीन बोस कर दिया है। तुमने एक पाकीज़ा ताल्लुक, एक मोहब्बत और एक भरोसे की तस्दील की है। मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी आसिफ। तुम जज्बाती हो रही हो वर्दा। वो बोखलाहट अमेज़ अंदाज में बोला, समझने की कोशिश करो, सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि अगर मैं जज्बाती हो रही तो। वर्दा इसकी बात काटते हुए बोली, मेरे हाथों का शिकंजा इस वक्त तुम्हारी गर्दन में कसा हुआ होता या फिर एक तरफ बैठी बेबसी से आंसू बहा रही होती। वो लम्हे पर को रुकी, भरमा देने वाली नज़रों से आसिफ को देखकर मुस्ताकम लहजे में बोली, मैं कोई बुज़दिल या कमज़ोर लड़की नहीं हूँ आसिफ, मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ और हकीकत आश्कार होते ही मैंने एक ठोस फैसला कर लिया है। अभी और इसी लम्हे से हमारे बीच दोस्ती, मोहब्बत या तल्लुक नाम की कोई शय बाकी नहीं रहेगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। बात ख़त्म करते उठकर खड़ी हो गई। आसिफ ने जल्दी से कहा, वर्दा फैसला करने में इतनी जल्दी ना करो, हम अब भी एक ही हैं। हम किस हैसियत से एक है मिस्टर आसिफ?
उस पार्ट लहजे मुस्तफसर हुई। वो बात बनाते हुए बोला, वर्दा हमारे दरमियान एक गहरा ताल्लुक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इन खोखली बातों से कुछ हासिल नहीं होगा आसिफ, वर्दा ने जहरखन लहजे में कहा। जिनसे दोस्ती हो, जिनसे मोहब्बत हो, इनसे कुछ पाया नहीं जाता। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताने ही वाला था। वो वर्दा के एतमाद को बहाल करने की आखिरी कोशिश करते हुए बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है वर्दा, और यकीन करो मैं तुमसे शादी करने के लिए संजीदा हूँ। और तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? वर्दा ने तीखे अंदाज में पूछा। क्या शबाना, सोतन और तुम्हारे दोनों बच्चे किसी सुतली माँ को बर्दाश्त कर लेंगे? हमारी शादी के लिए पता नहीं चलेगा, वो धीमी आवाज़ में बोला। यानी तुम छुपकर मुझसे शादी करना चाहते हो? हमारी शादी छुपकर नहीं होगी, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। बस शबाना और इसके ख़ानदान वालों को इस शादी की खबर नहीं होगी। क्या तुम मुझे कोई अहमक और बेवकूफ़ लड़की समझते हो आसिफ? वर्दा ने इसे घूर कर देखा। नहीं, वो अटकते हुए बोला। तुम ऐसा क्यों कह रही हो वर्दा? वर्दा ने तलखी भरे अंदाज में कहा, क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखते हो कि ये जानने के बावजूद भी कि न सिर्फ तुम शादीशुदा हो बल्कि 2 बच्चों के बाप भी हो, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी? इसमें हर्जी क्या है वर्दा? वो झुंझलाहट अमेज लहजे में बोला। दूसरी शादी का मुझे पूरा हक है, मैं भी शबाना के साथ खुश नहीं हूँ, इसलिए। वर्दा ने फौरन इसकी बात उचक ली। अगर तुम अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो तो इसे छोड़ दो, इसके बाद दूसरी शादी के बारे में सोचना। मैं गलत तो नहीं कह रही ना? वर्दा, तुम मामलात को संभालने की वजह बिगाड़ने वाली बातें कर रही हो, वो बेजारी से बोला। मुझ पर भरोसा रखो, मैं शादी के बाद तुम्हें अलग घर में रखूंगा, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, हम इस घर में बहुत खुश रहेंगे। तुम शबाना को बीच में ना लाओ, समझो वो कहीं है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती आसिफ, वर्दा ने चट्टानी लहजे में कहा। मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ और हक़ाइक़ से नुकात चुराने वालों को अहमकों की जन्नत का बाशिंदा समझती हूँ। मैं इतनी बड़ी सच्चाई को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ कि शबाना तुम्हारी बीवी है, जिससे तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। शबाना को मसला नहीं बनाओ वर्दा। वो इन लम्हात में सख्त उलझन का शिकार नजर आया। वो अगर आज मेरी बीवी है तो ये भी हो सकता है कि कल वो मेरी बीवी ना रहे। तुम कुछ अरसे तक इंतजार नहीं कर सकती। वर्दा ने हकीकत हाल से आगाही हासिल करते ही ये अटल फैसला कर लिया था कि किसी भी सूरत वो आसिफ से कोई संजीदा ताल्लुक नहीं रखेगी। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। जो लोग हकीकत पसंद होते हैं वो हालात के सिचुएशन को खुद पर रखकर देखने के आदी होते हैं। वर्दा ने ये सोचा कि अगर शबाना की जगह वो होती और आसिफ इसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी करने की बात करता तो इसके सोच और एहसास पर क्या गुजरती, या ये कि वो भी आसिफ की बातों में आकर शादी कर लेती। इसकी बात की क्या गारंटी आगे चलकर किसी के चक्कर में गिरफ्तार नहीं होगा। आसिफ की गलत बयानी और मशकूक अंदाज ने इसे बावर करा दिया कि वो भरोसे लायक नहीं, लेकिन उसे लाजवाब करने के बाद रुखसत होना चाहती थी। इसलिए इसकी वजाहत के जवाब में ठहरे हुए लहजे में बोली, आसिफ, शबाना तुम्हारी बीवी है और मैं सिर्फ इसी हकीकत पर फोकस कर रही हूँ। कल क्या होगा मैं नहीं जानती और मैं जिस शुबे के बारे में कन्फर्म नहीं हूँ इसके इंतज़ार पर यकीन नहीं रखती। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होगे। आसिफ ने बुरा समूह बनाया और उकताहट भरे लहजे में बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती, बल्कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वर्दा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और ये शादी की ज़रूरी है कि तुम शबाना को फौरी तौर पर छोड़ दो। फौरी तौर पर यह तो मुमकिन नहीं, वो झुंझलाहट अमेज लहजे में बोला। लेकिन मेरा ख्याल तुमसे मुख्तलिफ है, वर्दा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो उलझनज़दा लहजे में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ख्याल है कि तुम फ़ौरन शबाना को छोड़ सकते हो और ना ही कुछ अरसे के बाद, बल्कि तुम ऐसी हिमाकत कब सोच भी नहीं सकते। वर्दा ने एक तल्ख हकीकत खोलकर इसके सामने रख दी, क्योंकि आज तुमने जो कुछ भी है शबाना के डैडी मजीद अनवर के दस्ते करम की वजह से हो। मजीद अनवर ने तुम पर यह सारी मेहरबानी और अनायत अपनी बेटी के सुख, चैन और आराम के लिए की है। तुम इस जमी जमाई पुरतायुश और राहत भरी जिंदगी छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इधर तुमने शबाना से मुंह मोड़ा, उधर तुम अरसे फर्श पर आ गिरोगे। मेरा ख्याल है तुम घाटे का सौदा कभी भूल कर भी नहीं करोगे। फिर मैं तुमसे कोई उम्मीद क्यों रखूं? और वैसे भी वो सांस संवार करने के लिए मुतवक्किफ हुई, फिर गहरी संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, शबाना और उसके डैडी के हाथों में तुम्हारी हैसियत एक ज़रख़ीद खिलौने जैसी है और मैं किसी का खिलौना छीन कर खेलने की हामी नहीं हूँ। इसलिए मुझे भूल जाओ आसिफ, समझ लो हम कभी मिले ही नहीं थे। अगर आज के बाद तुम्हें मुझसे मिलने या रब्ता करने की कोशिश की तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय मेरा दर्द बढ़ाने के। और उस रोज़ के बाद वर्दा फिर आसिफ से कभी नहीं मिली। क्रिसेंट ट्रेडिंग कंपनी में आसिफ की आमदोरफ्त थी, लिहाजा वर्दा ने पहली फुर्सत में इस जॉब को खैरबाद कह दिया। कंपनी के मालिक करीम अब्दुल जब्बार को इसने हकीकत हाल से आगाह कर दिया था और यह भी कह दिया था कि इस मुलाजमत को जारी रखना अब इसके बस में नहीं रहा। वो किसी भी सूरत आसिफ का सामना करने की रवादार नहीं। करीम अब्दुल जब्बार ने इसके सामने चंद तजावीज़ रखी जिन पर अमल करके वो मुलाजमत को जारी रख सकती थी, लेकिन जब इसे किसी भी तौर पर आमादा कार न पाया तो फराख दिली से कहा
ٹھیک ہے وردہ، میں تم پر زیادہ زور نہیں ڈالوں گا، تم اچھے ورکر کے طور پر تمہیں ہمیشہ مجھے یاد رہو گی۔ تمہیں جب بھی کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہو، تمہارے کام آ کر مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ وردہ نے کریم عبدالجبار کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئی۔ ابتدا میں آصف نے اس سے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، وہ وردہ کے گھر سے واقف تھا، لیکن وردہ نے اپنی ذات کے سامنے نو لفٹ کا بورڈ آویزہ رکھا۔ آخر تھکا کر آصف مایوس ہو گیا اور اس نے وردہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ معزز سامعین حضرات، کہانی ابھی جاری ہے۔